Hello students, welcome you all, and in this lecture we are going to talk about the precession and equivalent and non-equivalent protons and question based on that, and some problem. We are going to discuss some problem. So let's first revise all what we have done up till now. In H1 NMR अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि NMR कब ऑब्जर्व होता है. दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस व्हेन वी अप्लाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द एटम विच हैव द न्यूक्लियर टाइनी बार मैग्नेट, दैट इज द प्रोटॉन, that it will absorb some frequency and it will show the flipping process, like from a lower spin to flipping of the spin state of the proton will take place, and during that absorption take place, and when the absorptional energy frequency becomes equal to the external magnetic field, the process of resonance is taking place, and then we get a signal in the spectrum. So this is about what we have done up till now. Now we are going to study the precession, जो हमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था. precession, what is precession and how it happens? precession process. earlier lecture, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था. precession is like you all must have done the you must have played with the spinning top. जो आप in the childhood we have the spinning top, and when we rotate that spinning top it is like this. सबने ही बचपन में स्पिनिंग टॉप के साथ सबने ही प्ले किया हुआ है. तो इट हैज़ दिस पोजीशन, एंड व्हेन इट इज स्पिनिंग दिस इज अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दिस इज दिस ओन एक्सिस. इट इज़ व्हेन यू रोटेट इट स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. दिस इज सिमिलरली वी कैन रिलेट दिस विद दी आवर टाइनी बार मैग्नेट. जो प्रोटॉन की न्यूक्लियर मैग्नेट है उसके साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं. इसी तरह सेम हमारा जो न्यूक्लियर प्रोटॉन है, न्यूक्लियर की टाइनी बार मैग्नेट है, इट इज़ प्रोसेसिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है. ओके, it is rotating on its own axis, the tiny bar magnet, and when we apply the external magnetic field, जब इस पे हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी H नोट स्ट्रेंथ है वो अप्लाई करें तो क्या होगा, हमें ये ऑब्जर्व करना है. देन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the spinning top, this tiny bar magnet which is rotating on its axis, it start processing. What is processing? Processing is basically when it traces out a circular path. ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, एंड इट स्टार्ट प्रोसेसिंग इन दिस सर्कुलर पाथ. देन दिस विल कम टू दिस पोजीशन, and again then to this, then it will come here, then here. So in addition to the rotation around its own axis, it also traces a circular path. For example, we can correlate with this. This is our tiny bar magnet, that is the proton. It is rotating on its own axis like this. It is rotating on its own axis. Like this, and then when an external magnetic field is applied, and in addition to external magnetic field we have the gravitational field which is also acting upon this. So what happens? It's in addition to rotation around its own axis, rotating around its own axis, it start processing in a circular path like this. Then this circular path which is traces out a circular path perpendicular to the earth gravitational field, this kind of motion, इस motion को हम क्या कहेंगे? precession. So our tiny bar magnet, कौन सी है tiny bar magnet? हमारा nuclear proton. ठीक है, the proton, it start processing in this circular way, and this circular path is called as, this motion of path is called as precession. So you can correlate with this. This is like this.
So this is about the precession of the nuclear magnet, and our nuclear magnet will start behaving like this. जब इस पे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोटॉन था वो अपने एक्सिस पे सिंपल रोटेट कर रहा था अलोंग दिस एक्सिस, बट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट प्रोसेसिंग इन दिस सर्कुलर वे बाय, एंड इट इज ऑल्सो, इस पे कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट ऑल्सो ग्रेविटेशनल फील्ड भी इस पे एक्ट कर रही है. और हम कह सकते हैं जो प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच नॉट. इट मीन्स जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं उसके प्रोपोर्शनल होती है हमारी प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी. सो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप अप्लाई करेंगे आउटसाइड से उतनी ही फास्टली हमारा जो प्रोटॉन ट्यूब टाइनी बार मैग्नेट है इट विल स्टार्ट प्रोसेसिंग. सो वी कैन से दैट न्यूक्लियर मैग्नेट और वी कैन से स्पिनिंग न्यूक्लियस. अब ये क्या हो गया, स्पिनिंग न्यूक्लियस. इट विल बिहेव लाइक अ स्पिनिंग न्यूक्लियस. स्पिनिंग न्यूक्लियस बिहेव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, and when the magnetic field is applied, the spinning nuclear magnet begins to precess about its own axis of spin. So when external magnetic field is applied, you can note this, when external magnetic field is applied, किस पे अप्लाई करते हैं, when the external field is applied, द स्पिनिंग जो पहले से ही स्पिन कर रहा था अपने एक्सिस पे उस पर अप्लाई करा है हमने सर्कुलर मोशन में, आपको सबको पता है दैट इज स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द स्पिनिंग न्यूक्लियर मैग्नेट now start processing about its own axis with an angular frequency. Start precessing about its own axis and it traces out a circular path. इसको भी ऐड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट ट्रेसेस, इसको भी ऐड कर लीजिए, इट ट्रेसेस आउट अ सर्कुलर पाथ which is perpendicular to Earth's gravitational field, which is perpendicular to the Earth's gravitational field. And this motion of the spinning nucleus magnet, it is called as precession. This is precession of the spinning nucleus. So the precession of a spinning nucleus due to the applied magnetic field, it leads to generation of a new angular frequency. अब ये जो we called it this, जिस फ्रीक्वेंसी से ये एंगुलर मोशन में रोटेट करता है हम उसको एक नई फ्रीक्वेंसी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम वी कैन रिप्रेजेंट इट विथ ओमेगा. We represent the precessional frequency by symbol omega. This is precessional frequency. Precessional frequency किसकी? Of the spinning nucleus of the proton. तो हम इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको दूसरा नाम भी बच्चों इसको कह देते हैं. दिस इज लार्मोर फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो नोन एज लार्मोर फ्रीक्वेंसी. क्लियर है? And the magnitude of this precessional frequency, it is we can say it is equal to the Larmor frequency. It may be equal to the gamma h naught upon 2 pi. So ये आप इसको भी इस तरीके से आप you can correlate with this. So this is about the that how the tiny nuclear bar magnet of the nuclear proton, how it process.
एंड नाउ हमने अभी बात करी है जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन की दो ओरिएंटेशन होती हैं, या तो वो जो अप्लाइड फील्ड की अलाइन हो जाएगा उसी डायरेक्शन में, या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। अगर वो सेम डायरेक्शन में अलाइन होता है तो वो हमारा लोअर स्पिन स्टेट होगा, इसे हम अल्फा भी बोल देते हैं, इसको बीटा भी बोल देते हैं, ठीक है। सो मोस्टली दोनों ओरिएंटेशन डिपेंड करती है उनकी स्पिन पे। दो जो नीचे दिस इज लोअर एनर्जी एंड दिस इज हायर एनर्जी स्पिन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोटॉन। ये हमने पिछले लेक्चर में हमने कर चुके हैं हम, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस। सो वी कैन ऑल्सो से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेट अलाइन नहीं करेगा विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बट वी प्रेसेस अराउंड इट। जो हमारा न्यूक्लियर मैग्नेट है उसके जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके साथ अलाइन नहीं हो जाता, बेसिकली प्रिसेस करता है। जो एक्चुअल मोशन जो होता है न्यूक्लियर मैग्नेट जो है हमारा, वो प्रिसेशन शो करेगा जब हम अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई करते हैं। और दिस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ एक प्रोसेस करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमने पढ़ा किसके, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, जो हमारा न्यूक्लियर बार मैग्नेट है वो प्रोसेस करेगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ एक सर्कुलर मोशन में। यहाँ भी अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और साथ साथ में वो एक सर्कुलर पाथ भी शो कर रहा है। तो स्ट्रॉन्गर दी अप्लाइड फील्ड, ग्रेटर विल बी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो आपने इसको रिलेशन को आपने ध्यान रखना है। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। व्हेन द ओरिएंटेड न्यूक्लियाई, जो हमारा प्रेसेंसिक प्रोटॉन है, अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि हमारी रेडियो वेव्स हैं किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की हम अप्लाई करते हैं, जैसे हमने बात करी थी 60 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज के बीच तक की हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करें तो क्या होगा, तो हमने पढ़ा है फ्लिपिंग होगा। फ्लिपिंग किसका होगा, जो हमारा लोअर स्पिन स्टेट है प्रोटॉन का अल्फा, वो बीटा में चेंज हो जाता है। फ्लिपिंग ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी विल टेक प्लेस। और क्या होगा, जब फ्लिपिंग प्रोसेस होगा तो अब्जॉर्प्शन होगी, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब करेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे वो फ्लिपिंग होगा, एंड हमें सिग्नल मिलेगा हमारे स्पेक्ट्रम में, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सो ये कब होगा, दिस विल ओनली हैपन when the precessional frequency become exactly equal to the frequency of electromagnetic radiation and energy can be transferred from incoming radiation to the nucleus. This is very important, ये हमेशा याद रखना है, ये आप इस पॉइंट को नोट कर लो। एनएमआर में सिग्नल कब ऑब्टेन होता है, हमें पता है जब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कब होता है, जब एनर्जी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हमने अप्लाई की है वो उतनी ही एनर्जी डिफरेंस उनका जो उसको सेम कर जाए। सो अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है, हम एक और चीज़ हम और इसमें डिटेल में गए हैं कि प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तब होता है अब्जॉर्प्शन, तब हमें सिग्नल मिलेगा। प्रिसेशनल क्या होगी, तो यू कैन राइट डाउन व्हेन, अब हम सिंपल ये नहीं बोलेंगे कि जो न्यूक्लियर मैग्नेट है, टाइनी बार मैग्नेट है, प्रोटॉन की जो एनर्जी डिफरेंस का तो जब इक्वल उतनी अमाउंट के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अब्जॉर्ब करेगा तो होगा। हम उसको और प्रिसाइसली हम बोलेंगे जब प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, व्हेन प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बिकम्स it becomes equal to frequency of, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देन एनर्जी कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनकमिंग रेडिएशन जो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं, इनकमिंग रेडिएशन टू दी न्यूक्लियाई। रेडिएशन टू दी न्यूक्लियाई। सो एनर्जी ट्रांसफर कब होगा, इनकमिंग रेडिएशन से कब एनर्जी न्यूक्लियाई अब्जॉर्ब करेगा न्यूक्लियर प्रोटॉन का, जब प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जो ओमेगा है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ओमेगा, when this omega become equal to the frequency of the electromagnetic radiation, ये कौन सी है जो आप एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं,
जब प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैच कर जाएगी जो अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो हमारा अब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का। कौन से, कहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब होगी? जो इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई करी है, जो इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं प्रोटॉन पे, वहाँ से एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होगा। देन फ्लिपिंग प्रोसेस विल take place, and when the flipping process will take place, then we get the signal in the NMR. Okay, then we get the absorption signal peak. हमें peak तभी मिलेगी जब ये प्रोसेस होगा। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकमिंग रेडिएशन से एनर्जी का ट्रांसफर कब होगा न्यूक्लियाई में? जब हमारी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये आपने बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। अब हम ये बोलेंगे प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जब प्रोटॉन की इक्वल हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तब एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं? जो रेडियो वेव्स, हमने रेडियो वेव्स जो आप अप्लाई करते हैं फ्रॉम 60 मेगाहर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज तक की अप्लाई कर देते हैं। नॉर्मली हम 60 मेगाहर्ट्ज की रेंज की फ्रीक्वेंसी भी यूज्ड इन द NMR, स्टडी ऑफ द H1 NMR. So this is about the resonance, and this resonance is due to the, we know that why it is happening, due to the magnetic properties of the nuclei. वही न्यूक्लियाई में NMR शो करते हैं जिनमें we have the spin quantum number I is non-zero. क्लियर है? and this is known as nuclear magnetic resonance. तो बार बार ये बात रिपीट होती जा रही है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या होता है। दिस इज द बेसिक एक्चुअल पिक्चर कि जब प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी मैच होगी, देन वी गेट द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम, NMR, H1 NMR जिसको हम बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल दैट हाउ द रेजोनेंस टेक प्लेस। सो दिस इज बेसिकली इन डिटेल द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसीज एक्चुअली। अब हम सिंपल ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्रोटोनिक एक्सिस पे सर्कुलर अपने एक्सिस पे तो रोटेट कर रहा है, लेकिन इन एडिशन टू एक्सिस इट आल्सो प्रोसेसिंग इन दी लाइक दिस, इट इज आल्सो प्रोसेसिंग इन दिस मोशन। क्लियर है? एक कॉनिकल इस सर्कुलर वे में इट इज प्रोसेसिंग लाइक दिस। क्लियर है? ये यहाँ पोजिशन आएगी, देन दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। So this is about the precession process. Now next we are going to talk about the, अभी हमने पहले भी बात करी थी, that is the nuclear spin state, the population density of nuclear spin state. That signal हमें क्यों मिलता है? जो लोअर स्पिन स्टेट और अपर स्पिन स्टेट है प्रोटॉन की, अगर दोनों में पॉपुलेशन सेम होगी, ठीक है, तो हमें तो सिग्नल हो नहीं पाएगा। अगर दोनों में ही जो सेम है, दोनों स्पिन स्टेट की पॉपुलेशन सेम है, तो हमारे पास देयर विल बी नो चेंज फ्रॉम लोअर टू हायर स्पिन स्टेट, देयर विल बी नो। बट वी हैव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अगर दोनों में डिफरेंट होंगे तभी हमारा चेंज होगा, अल्फा से बीटा स्पिन में जाएगा। अगर सेम होगा तो अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी, नहीं सिग्नल मिलेगा हमें। सो वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। जो हमारी दोनों स्पिन स्टेट होती हैं, अल्फा बीटा, दोनों की अनइक्वल एनर्जी होती है, एंड ऑल्सो they have two spin state. We know that we have the two spin state, we call it as alpha or beta. These are also unequally populated. दोनों में जो न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन है वो अनइक्वली पॉपुलेटेड है। So the spin state with the lower energy is more populated with the spin state with the higher energy. तो हमारा जो lower energy spin state है अल्फा and higher energy beta, this is more populated. This is less populated. So there is probability that the nuclei can go from this to beta state. So it is observed that at 60 megahertz radio frequency of 60 megahertz, the energy difference between the two spin state is around
जब at this frequency the energy difference between two state is very low. It is around, the energy difference between two state is around 2.39 into 10 raised to power minus 5 kilojoule per mole. So this is very small. So we can expect that at room temperature the thermal energy, there is thermal energy, तो room temperature पे इतनी energy तो होती है जो कि एक sufficiently क्या करे, दोनों spin state को populate करे. And magnitude of difference between the two spin state can also be calculated by using the Boltzmann equation. जो हमें बोल्ट्जमैन इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन होती है उसको यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड द अपर एंड लोअर स्टेट. तो हम बोल्ट्जमैन इक्वेशन को यूज़ करेंगे और वहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी. सो बोल्ट्जमैन इक्वेशन इज लाइक दिस. This is n upper, the number of nuclei in the upper spin state divided by number of nuclei in the lower spin state. It is equal to epsilon, that is exponential in del E by kt. Then we can further simplify it like this. इसको note कर लीजिए. We can write n upper and lower is equal to exponential of del E, the energy difference. This is the energy difference between those two spin state. K is Boltzmann constant, T is the temperature. So we can simplify it like this. जब एक्सपोनेंशियल को हम सॉल्व करते हैं पावर, वी कैन राइट दिस वन माइनस ऑफ दिस इज 1 माइनस del E upon kt. अब यहाँ पर एनर्जी जो हमारा del E क्या है, del E इज बेसिकली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्पिन स्टेट. del E is the energy between two spin state at 25 at room temperature. The H1 nuclei when external magnetic field is around 1.4 Tesla, del E is equal to h nu by kt, where nu is precessional. कौन सी फ्रीक्वेंसी है, प्रिसेशन ऑफ द न्यूक्लियर मैग्नेट. तो व्हेन वी कैलकुलेट दिस, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यू ऑल सबको पता ही है बच्चों, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट which is has the value 6.626 into 10 raised to power joule per, that is joule second. and frequency हमारी जो होती है precessional frequency of proton is 60 megahertz. इसको हम सेकेंड्स में लिख सकते हैं. सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 10 raised to power 6. K Boltzmann constant value 1.38 into 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin, and then temperature is 298 Kelvin. Clear है? So this is because why we have put this gamma is equal to 16 to 60 megahertz, because we have frequencies directly proportional to h naught, and h naught हम 60 megahertz use करते हैं. That's why we have put mu is equal to 60 megahertz. So when we calculate this, it comes out to be 0.999991, and we can write it like this. In millions. 9. So
this ratio tells that if we have 2 million nuclei, total अगर हमारे 2 million nuclei हैं, then the lower energy state occupy the 9 more nuclei in the lower energy state. अगर 2 मिलियन न्यूक्लियाई हमारे पास होते हैं तो 9 मिलियन न्यूक्लियाई एक्स्ट्रा हैं लोअर एनर्जी एक्सेस में है, 9 एक्सेस में है. क्लियर है? अगर इतने होते हैं देन वी कैन से दैट देयर इज 9 मोर न्यूक्लियाई इन द लोअर स्टेट. क्लियर हुआ? सो दिस कैलकुलेशन क्लियरली एक्सप्लेन दैट देयर इज सम एक्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल इन द लोअर स्पिन स्टेट. क्लियर है? 1 मिलियन है तो नीचे 9 एक्स्ट्रा उसमें अवेलेबल हैं, और जितने भी एक्सेस अवेलेबल हैं तो वी कैन इजीली गेट द एनएमआर, बिकॉज एनएमआर कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय द व्हेन द फ्लिपिंग प्रोसेस टेक प्लेस. फ्लिपिंग कब होगा? दोनों स्पिन स्टेट की पॉपुलेशन न्यूक्लियर, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिफरेंट होंगे. अगर दोनों के स्पिन में पॉपुलेशन ऑफ न्यूक्लियर सेम होगी, एग्जैक्टली सेम होगी, तो कोई सिग्नल ही नहीं ऑब्जर्व होगा, क्योंकि फ्लिपिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगी. सो उस पॉइंट को भी हम कहते हैं सैचुरेशन. जिस पॉइंट पे हमें कोई सिग्नल ना मिले, जब पॉपुलेशन दोनों स्पिन स्टेट की सेम हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज सैचुरेशन.